or interactive all the time? Sir, you are on mute. Maybe somebody is doing this kind of nonsense. I request all the students, if someone is not interested, they can leave, but don't create such messes. If anyone is not interested, he or she can leave. So I wish this should not happen, and you try to be responsive or interactive as much as possible. And after completion of certificate, you all will be entitled for a course completion certificate also, only if you attend the minimum required classes and submit your assignment on time. So with all this, I once again wish you all a great learning. So thank you, Rizwan sir, for sharing my ideas, giving me the opportunity to share my ideas. Now over to you, sir. Thank you so much, sir. So let me share my screen, then we will start. So please change settings of the meeting. Too much students are presented there. Trying to do that, but actually due to internet issue, it is taking so much for meeting up. So till then, if manage properly, that you are not going to disturb anyway. मैं बताऊं जो गलती मैंने कही ना पिछली बार वो तुम ना करियो ये तो कई बार ऐसी होगी ना
Rijwan sir. Rijwan sir. Sir, you are not audible, Rijwan sir. Okay, so I welcome you all once again in the module 1, first class of advanced course on machine learning using. I hope the first slide is visible to on which you can see the name of the module 1, that is introduction to machine learning. Rizwan, Hello? जी Rizwan, मैम बताओ. interrupt you. There is one student named Vishal Godia. He is still a Okay मैम. Please make him as a attendee and please make me as a presenter so that if there is any disturbance, then I can change it. I need not to call you again and again. Okay, okay. Okay, okay, okay. Nisha ma'am, your mic is on. Please keep it off, switched on. Off, sorry. Rizwan sir, you just make me as a presenter. I'll do rest of the things. You may please start with your presentation, or you may please start with your class. Just make me as a presenter. Okay. Okay, आप अपनी क्लास शुरू कर लीजिए. रेस्ट मैं अपने आप देख लूँगी. So you are with name Nisha. Nisha.mc. आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी. Nisha.mca. जी. Okay. So I make you as a presenter. Okay. ओके सर, आप अपनी क्लास शुरू कर लीजिए. मैं रेस्ट. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. Slide is visible to all of you. Okay. Next. Today's session machine learning. Okay. Rizwan sir, So what? slides are not visible. I can see only black screen. If everyone else can see, then it's okay. Otherwise, I am. No, ma'am, screen is Ma'am, visible. next Module one. 1 is written introduction to machine learning. Visible. Okay. Yes. Yes, visible. Yes. Okay. Machine learning and its significance and application, then especially supervised versus, and have
overview of reinforcement learning. And then we will also have an overview of deep learning. And then we will come to introduction to Python programming. So these 5 to 6 things overview wise we are going to discuss in today's session. So let me share again. I think for few people slides are not visible, so I'm going to share my screen again. Okay. So now I hope this slide about topics is visible to all of you. Not visible, sir. Yes, sir, visible. Visible. I think it is little bit my due to slow connection. I think after Your voice is breaking a lot. सर आपकी आवाज What समझ I am नहीं आ going रही. to do. So I am going Your to break is do always that. I will breaking. PPT Sir, your voice is not PPT clear. on group. So your voice is breaking a lot, sir. Sir, wait. So let me. I shared today PPT. PPT we are going to use. Voice So बहुत better break if you हो can रही है. download it. Sir, your voice is Your breaking. सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. Yes, sir. Yes. बता मैं जाना तो नहीं जाना तो रहने जाना तैयार हो जाओ तेरी मर्जी तेरा मर्जी मेरी इंटर शर्ट नहीं लगा दिया
what I would suggest that I shared today's PPT to the group. Okay, so please download that PPT and then slide wise. सर आपने कहाँ शेयर किया है? व्हाट्सएप ग्रुप में क्या? व्हाट्सएप पे किया है सर। व्हाट्सएप पे किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ना वहाँ से डाउनलोड कर लें स्लाइड्स, एंड यहाँ से सर के एंड से काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो यहाँ से वीडियो अगर हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके देखें। Sir, we didn't get the presentation yet. सॉरी तो ग्रुप पे आई नहीं अभी। ओके, मे बी इट विल टेक सम टाइम, तो वो अपलोड कर रहे होंगे। वो हो गया है, देखो, नाउ यू चेक इट, मॉड्यूल 1 ML यूजिंग, राइट? Hope you all have received this module 1 on Yes, sir. WhatsApp. Yes, sir. Got it. Yes, sir. So I request all the participants to download it first. Or it may be possible if someone has good internet connection, he or she can share the screen, and Rijwan sir take up from there. And Sir, we didn't get PPT. Sir, I think on your end network is perfect, so you can share the screen. it's there on WhatsApp group. Have you joined the WhatsApp group? No, sir. No, sir. Nisha ma'am, please make me presenter. ओके सर, आपने MCA first A, yeah. Okay, give me 1 minute, I'll make you the person. Okay, sir, I have made you as a presenter. Is my screen is visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So Rijwan sir, can you manage it now? Yes, sir. Yes, sir. You were here. You can start it from here. Yes, sir. Topics. So these are the topics that we are going to discuss. Hope I am audible now. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before actually going to these topics, we have a question that what actually you think at your level, that can machines really think? कि क्या machines think कर सकती हैं, सोच सकती हैं कुछ ना कुछ? तो इस क्वेश्चन को आंसर करते करते कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचेंगे एक टर्म पे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सुपर सेट है मशीन लर्निंग का. सो we will dedicate this slide, only one slide,
in one slide. Okay, we are going to just have an overview of artificial intelligence, that what actually we mean by artificial intelligence. So artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machine. So what is the basic thing, that जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है वो मशीन उसी तरह से इंटेलिजेंट हो जाए, ठीक है, उसी तरह से थिंक कर सकें, उसी तरह से सोच सकें. जो ये पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा डोमेन है, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, ताकि जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह थिंक करने लगे. ठीक है, ये इस डोमेन के बारे में बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. एंड द टर्म मे आल्सो बी अप्लाइड टू एनी मशीन. ठीक है, ये किसी भी मशीन पे अप्लाई किया जा सकता है. ये रोबोट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी मशीन और डिवाइस को अगर आप ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक करने के बारे में सोचते हो कि उसको बनाया जा सकता है, तो दैट वी आर एक्चुअली डीलिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, और ह्यूमन बीइंग कैसे थिंक करता है, क्योंकि वो लर्न कर सकता है, चीजों को सीख सकता है, नई चीजों को सीख सकता है, एंड जो उसकी लर्निंग है उसको वो अप्लाई कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, तो इसी तरह से अगर मशीन्स थिंक करना सीख जाती हैं, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो एज अ लेमैन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग की कहीं कोई बात नहीं हो रही है. सिंपली इफ मशीन्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन, ओके, अगर वो मिमिक भी कर लेती हैं कि ह्यूमन जैसे थिंक करते हैं, देन वी आर डीलिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली. ठीक है, टेक्निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना और कैसे और कौन सी टेक्निक्स हैं, मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस स्लाइड स्पेशली. दूसरा जो क्वेश्चन है कि ठीक है, मशीन्स को अगर ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक करना है तो उसके लिए उसको पहले लर्न भी करना पड़ेगा. तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन मशीन्स लर्न? कि क्या मशीन लर्न कर सकती हैं? क्योंकि वो लर्न कर सकती हैं तो आगे उस लर्निंग को यूज भी कर सकती होंगी फिर. सो यहाँ पे आपके पास जो है इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लोर करते करते कि क्या मशीन्स लर्न कर सकती हैं, कैसे लर्न कर सकती हैं, अगर लर्न कर सकती हैं तो उसको एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंचेंगे मशीन लर्निंग पे. ठीक है, so I would request to go to slide number 6, sir. Slide number 6. So पहले हम लोगों ने बात की कि क्या मशीन्स लर्न कर सकती हैं, तो इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो उसको एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंचेंगे मशीन लर्निंग पे. जैसा कि नाम ही है, मशीन लर्निंग. लर्निंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये जो सबसेट सुपरसेट का रिलेशन है, ये समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए ही मशीन लर्निंग क्या है, mainly concerned with the development of algorithms which allow a computer or machine to learn from the data and past experiences on their own. तो मेनली मशीन लर्निंग में कैसे मशीन्स लर्न कर पाएंगी ताकि फाइनली हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव कर पाए, तो उसके लिए मशीन को लर्न करना होगा. और ये जो डोमेन है मशीन लर्निंग, इसमें मेनली हम लोग कंसर्न होते हैं कि ऐसे एल्गोरिदम्स, ऐसे मॉडल्स डेवलप कर पाए जो अलाउ करे कंप्यूटर को या मशीन को, ताकि वो डेटा से, जो भी अभी प्रोवाइडेड डेटा है, अवेलेबल डेटा है या पास्ट एक्सपीरियंस, उससे वो लर्न कर सके. जैसा कि ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, अगर ह्यूमन बीइंग के साथ क्या चीज है कि अगर आप जो है किसी एक गर्म चीज को, ठीक है, तो आप बर्निंग होती है, तो आप अगली बार जो है फिर ऐसी गर्म चीज को छूने से बचते हैं. तो ये क्या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसके बेस पे लर्न करते हो कि गर्म चीज को नहीं छूना है. ठीक है, तो ये एक सिंपल हम लोग कई बार जो है इस तरह की लर्निंग को अप्लाई कर रहे होते हैं. यही हम लोग मशीन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उसके लिए हम लोगों को एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स डेवलप करने हैं. और जो टर्म है मशीन लर्निंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर सैमुअल इन 1959. ठीक है, तो ये टर्म इन्होंने ही क्वाइन किया था. देन वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड. So in next slide you can see machine learning enables a machine to automatically learn from data.
सो अब हम लोगों को ये है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाए, मशीन खुद ब खुद डेटा से सीख पाए, ऑटोमेटिकली सीख पाए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, और जो उनके एक्सपीरियंस रहते हैं उससे वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए, एंड प्रिडिक्ट थिंग ऑफ बीइंग, और वो थिंग्स के बारे में प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में ये चीज कैसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टीचर स्टूडेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट करता है कि अगर स्टूडेंट क्लास में रेगुलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट रेगुलर नहीं है और उसने एग्जाम्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो एक टीचर इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस स्टूडेंट का ग्रेड अच्छा नहीं आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, वो ऐसा कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है? क्योंकि उसने प्रीवियस सेमेस्टर्स में बाकी स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लास में रेगुलर नहीं है एंड उनका जो सेशनल एग्जाम्स, जो क्लास टेस्ट है, उसमें अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो वो फाइनल ग्रेड उनका अच्छा नहीं होता है ऐसे स्टूडेंट्स का। ये अपना टीचर का एक्सपीरियंस है, तो इस बेस पे वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगर इस सेमेस्टर करंट सेमेस्टर में भी एक स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो उसके भी ग्रेड जो है अच्छे नहीं हो सकते हैं, ऐसा प्रिडिक्शन हो सकता है, टीचर कर ले। तो एज अ ह्यूमन बीइंग जो हम लोग इस तरह के प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि मॉडल्स बनाएं, लॉजिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स, जो प्रिडिक्ट कर ले कि जब आप उसमें स्टूडेंट्स का डेटा फीड करो कि कितनी क्लासेस अटेंड की है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट के लिए इजीली है, बट अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंडेंस परसेंटेज फीड किया जाए, उनके क्लास टेस्ट के मार्क्स फीड किए जाए, तो वो उसको एनालाइज करके देखता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके के क्लास अटेंडेंस कम है, क्लास मार्क्स कम है, तो फाइनल ग्रेड भी कम हुई। इससे वो सीखता है, एक्सपीरियंस, ये एज अ एक्सपीरियंस स्टोर कर। फिर जब एक नए स्टूडेंट का आप डेटा देते हो कि इस स्टूडेंट का मार्क्स कम है, अटेंडेंस परसेंटेज कम है, तो क्या होता है कि तब आपको वो जो मशीन है या कंप्यूटर है, ये कंप्यूटराइज्ड जो आपने बनाया है मशीन लर्निंग बेस्ड, वो आपको बता देगा कि यस दिस स्टूडेंट विल हैव लो ग्रेड। इन तो इसी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली मशीन्स में के लिए। सो वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। So next slide में mainly है with the help of sample historical data which is known as training data। तो इस तरह का जो आप पहले डेटा प्रोवाइड करते हो, या टीचर जो है पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखते हुए समझता है कि ऐसे स्टूडेंट्स इन जनरल जो है उनका ग्रेड लो हो जाता है, तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ये ट्रेनिंग डेटा होता है एक्चुअली में। यानी कि आप ट्रेन कर रहे होते हो पहले मशीन्स को कि जब भी इस तरह का डेटा आए तो उसका रिजल्ट इस तरह का आ सकता है। ठीक है, सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बिल्ड अ मैथमेटिकल मॉडल। तो इसके बेस पे जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके मॉडल बनाते हैं दैट हेल्प्स इन मेकिंग प्रेडिक्शंस और डिसीजंस, जो कि फाइनली प्रेडिक्शन या डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग ब्रिंग्स कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स टुगेदर फॉर क्रिएटिंग प्रेडिक्टिव मॉडल्स। तो ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल बनते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट तो यूज होते ही हैं, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं कंबाइन किया गया है मशीन लर्निंग में। तो इसीलिए अगर प्री रिक्विजिट्स कहें कि मशीन लर्निंग में ही किसी को प्रॉपरली जो है अपना करियर बनाना है, तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही शुड नो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेसिक्स ऑफ स्टैट्स आल्सो। ओके, एंड स्टैट्स है तो ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो भी आनी ही चाहिए। एंड मशीन लर्निंग कंस्ट्रक्ट्स और यूजेस द एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं जो हिस्टोरिकल डेटा से लर्न करें। द मोर वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन द हायर वी विल बी द परफॉर्मेंस। इसका मतलब हुआ कि जितना आप ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि हमने 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा दिया कि इनका क्लास परसेंटेज ये रहता है और क्लास टेस्ट में मार्क्स ये हैं, तो इनका फाइनल रिजल्ट ये आया है। ठीक है, ऐसे हमने 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा पहले मॉडल को प्रोवाइड कर दिया, तो उससे वो लर्न कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आप प्रिडिक्शन करोगे किसी एक नए स्टूडेंट के लिए तो वो ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, बनिस्बत अगर आप सिर्फ 1,000 स्टूडेंट का डेटा प्रोवाइड करो उसके प्रेडिक्शन करो तो वहां चांसेस
वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा उतना ज्यादा जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस रहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के। ठीक है, so there is a question that input data that we provide to machine learning models is called training data or testing data। तो अभी हमने बताया कि जो आप इनपुट डेटा पहले प्रोवाइड कर रहे होते हो मशीन लर्निंग मॉडल्स को, वो ट्रेनिंग डेटा होता है। ठीक है, और ऐसा इन जनरल होता है कि जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज कर रहे होते हैं तो जो अवेलेबल डेटा है उसी का कुछ पोर्शन हम लोग ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज कर लेते हैं और कुछ पोर्शन बचा के रखते हैं, वो टेस्टिंग डेटा के लिए यूज करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं कि इसका प्रेडिक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, so in next slide we will come to applications of machine learning। So on slide number 12 we will go next, on slide number 12। So on slide number 12 that is about applications of machine learning। अभी मशीन जो AI का सबसेट है कहीं ना कहीं वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस से। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या है कि जो वो पहले इन मशीन लर्निंग मॉडल को एज अ ट्रेनिंग सेट प्रोवाइड किया जाता है कि एक्सरे को देख के पता किया जा सके कि इसमें कौन सी डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। या अगर अभी हम लोग बात करें अभी के पैंडेमिक की, तो सिटी स्कैन्स को देख के ये पता किया जाना है कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, सिटी स्कैन्स को देख के ये पता किया जाना है। 10,000 सिटी स्कैन्स, ठीक है, को पहले जो है यूज किया जाता है ट्रेन करने के लिए, और उसके बेस पे देखा जाता है कि कुछ में कोविड पॉजिटिव थे, कुछ में कोविड नेगेटिव थे। तो जब इस तरह का पूरी ट्रेनिंग कर दी जाती है मशीन लर्निंग मॉडल्स की, देन वी टेक अ न्यू सिटी स्कैन ऑफ अ न्यू पेशेंट। ठीक है, आपने क्या किया, पहले 10,000 पेशेंट्स के सिटी स्कैन लिए और उनको कोविड पॉजिटिव था या नहीं था ये भी नोट कर लिया, और ये सारा डेटा हर एक सिटी स्कैन के लिए आपने जो है प्रोवाइड कर दिया मशीन लर्निंग मॉडल। अब मशीन लर्निंग मॉडल को 10,000 ऐसा डेटा प्रोवाइड करने के बाद मशीन लर्निंग मॉडल ने अपने आप को जो है अपडेट कर लिया कि इस तरह के सिटी स्कैन के लिए कोविड पॉजिटिव होता है, इस तरह के सिटी स्कैन के लिए कोविड नेगेटिव होता है। तो अब आप एक नए पेशेंट का सिटी स्कैन लोगे और उसको जो है प्रोवाइड करोगे कि करेगा और बताएगा फिर फाइनली कि इस सिटी स्कैन इनको कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होती हैं डिजीज प्रिडिक्शन के लिए कि ऐसा डिजीज इसको हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी पेशेंट को जो है अभी कुछ किडनी के भी इश्यूज आ रहे हैं, तो फाइनली उसको जो है कोई और नई डिजीज तो नहीं होगी, तो ऐसा बाकी पेशेंट्स के डेटा को देख के जाता है। नेक्स्ट वी कम टू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में क्या कि पिछले स्टॉक के रिकॉर्ड्स को देख के पता लगाया जाता है कि कब से हाई जा सकता है या कब किसी कंपनी के शेयर जो है वो हाई पे जा सकते हैं। इस तरह के स्टॉक में भी यूज किया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं आजकल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या दूसरे तरह के, तो उसको भी एक्सेस किया जा सकता है इस तरह का डेटा प्रोवाइड करके। अगर बात करें वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट की, तो सीरी जो वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट का एप्लीकेशन होता है इस तरह से, वो मशीन लर्निंग होता है कहीं ना कहीं। जो हम लोग अपना ईमेल यूज करते हैं उसमें कुछ जो ईमेल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, तो वो फिल्टरिंग जो होती है उसमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। साथ जो है जनरल स्पैम, तो वो वेरियस नंबर ऑफ ईमेल्स को पहले जो है उसको ट्रेन कराया जाता है कि ऐसे ईमेल्स जो है इन वर्ड्स के साथ जो ईमेल आ रहे होते हैं वो इन जनरल स्पैम के होते हैं। तो क्या करता है कि जब भी आपके इनबॉक्स में कोई नया मेल आता है तो उसको वो कैटेगराइज किया जाए। इसी तरह से अगर इसकी हम लोग बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है गूगल कार्स, उसमें भी मशीन लर्निंग के बेस पे डेटा को एनालाइज किया जाता है
और जो उसकी ओवरऑल पूरे सेंसर्स से जो डेटा आ रहा होता है उसको एनालाइज किया जाता है। इसी केस में ड्राइवर यहाँ पे टर्न ले सकता है, ठीक है। तो वो प्रीवियस जो उसके पास डेटा होता है उसके बेस पे वो अपडेट करता है सेल्फ ड्राइविंग कार में सेंसर्स से जो डेटा आ रहा होता है अपडेट रखी जा सकती है। रिकमेंडेशन में क्या, इन जनरल इस एज लोग हैं, फॉर एग्जांपल 220 पे जो लोग हैं ऐसी खास कंपनी के मोबाइल को ही परचेज कर रहे हैं, या मोबाइल गूगल पे लिए उसी कंपनी जो मोबाइल्स हैं ब्रांड्स हैं उसको वो आपको सबसे पहले दिखाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में जो आप ऑनलाइन सर्चिंग करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें जो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं वो आप कैसे प्रोडक्ट इन जनरल आप इससे पहले या आप लोगों ने बाई किया है। फिक्स प्रेडिक्शन ये किया जाता है कि उस टाइम पे उस रूट पे पिछले दिनों में कितना ट्रैफिक रहा है, उस डेटा को एज अ ट्रेनिंग डेटा यूज किया जाता है और फिर प्रिडिक्ट किया जाता है कि आज के डेट में, ठीक है, इस टाइम पे कितना। स्पीच रिकॉग्निशन भी इसी तरह से है कि जो ऑडियो है उसको आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इसमें क्या कहा गया है, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब जो है एआई में मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं इसके मॉडल्स। इमेज रिकॉग्निशन के इमेज को आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कलेक्शन ऑफ इमेज है, कुछ इमेजेस है उसको एक जगह पे, तो अब जो है आप उससे मशीन जो है अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाए कि इनमें से कौन सी इमेज जो है कैट्स की है, कौन सी इमेज जो है डॉग्स की है, ठीक है। तो पहले इस तरह का आपको ट्रेनिंग सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बेस पे मशीन लर्न कर लेगी एंड मॉडल बिल्डअप कर लेगी कि आप एक इमेज भी तो क्लास ये कैट की है या डॉग की है। तो इस तरह का इमेज रिकॉग्निशन में भी यूज किया जाता है। एंड ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो हम लोग गूगल ट्रांसलेटर वगैरह यूज करते हैं उसमें भी मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं तो आप देख रहे हैं कि एक वैरायटी ऑफ डोमेन में मशीन लर्निंग को अप्लाई किया जाता है। So in next slide we will come, the importance of machine learning can be easily understood by its use cases। तो आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा इसके यूज केसेस हैं, ठीक है, कि हम लोग डेली लाइफ में भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। हम लोग अपना इनबॉक्स ईमेल के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसमें स्पैम एंड नॉन स्पैम जो होता है वो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसमें काम कर रहे होते हैं। एंड करेंटली मशीन लर्निंग यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसा भी हम लोगों ने बात किया, साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन। जब आप फेसबुक पे कोई नई पिक्चर डालते हो उसमें क्या करते हैं कि जो फेस पे आपको ऑटोमेटिक टैगिंग का जो है सजेशन आता है फेसबुक की तरफ से, ठीक है। तो वो जो है टैगिंग हो सकती है, वो सजेशन जो करता है वो फेसबुक करता है, क्योंकि आपने इससे पहले जो उसने ट्रेनिंग सेट यूज किया हुआ है कि इस इमेज के लिए इस नाम को यूज किया गया था। तो उसी बेस पे वो आपको कोई भी आप इमेज डालते हो तो उस पर क्या करता है वो फ्रेंड सजेशंस जो है रेकमेंड, तो जो आप फ्रेंड फेसबुक रिलेशन लर्निंग बेस्ड है। तो आप देखो डेली लाइफ एक्चुअली में मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को हम लोग यूज ऑलरेडी करना शुरू कोई बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। And various top learning model amount of data to analyze the user interest and recommend product accordingly। तो Netflix पे आपको कैसे वीडियोस जो है recommend किए जा रहे हैं, या इवन YouTube पे कैसे वीडियोस जो है आपको recommend किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं जो आपका प्रीवियस डेटा रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज किया जाता है वहां पे और उसी बेस पे recommend किया जाता है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब जो है डेटा को एनालाइज करके जो मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स हैं उनको यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए। तो ये तो बात हो गई कि एक वाइडली यूज हो रहा है ऑलरेडी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस जो है उनको यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। सो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मशीन लर्निंग में, एंड नेक्स्ट वी कम टू
नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। तो अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो आप कह सकते हो कि मशीन लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं उसमें वो सुपरवाइज्ड हो सकता है या अनसुपरवाइज्ड हो सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सुपरवाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई एक छोटा बच्चा है मान लिया जाए, और उसको जो उसके फादर हैं मान लिया जाए कि सिक्के देते हैं, ठीक है, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का, तो 5 रुपए के सिक्के को बताते हैं कि ये देखो ये छोटा है, इसका सर्कल कम है, रेडियस कम है, ये 5 रुपए का सिक्का है। और ये 10 रुपए का सिक्का जो है ये थोड़ा बड़ा है, इसका रेडियस ज्यादा है, ये 10 रुपए का सिक्का है मान लिया जाए। तो इस तरह से वो सुपरवाइज करते हैं पहले, के बाद क्या करते हैं, ऐसे कई सिक्के उसको दिए जाते हैं कि ये देखो ये छोटा है, ये 5 रुपए का, ये छोटा है, ये 5 रुपए का, ये बड़ा है, ये 10 रुपए का, ये बड़ा है, ये 10 रुपए का। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, लेबलिंग के साथ लेबल भी दे रहे हो, बता रहे हो कि ये छोटा है या बड़ा है, तो उसके फीचर को आप बता रहे हो, उसके फीचर्स बता रहे हो कि छोटा है या बड़ा है, ठीक है। और 5 रुपए का है, छोटा वाला 5 रुपए का है, तो ये आपने एक लेबल दे दिया उसको फाइनल आउटपुट में, ये छोटा वाला जो है 5 रुपए का है, तो 5 आपने बता दिया, दैट इज अ लेबल फॉर दैट कॉइन। इसी तरह से छोटा जो सिक्का, बड़ा जो सिक्का है वो 10 रुपए का है, तो वो आप एक लेबल दे रहे हो कि ये 10 रुपए का, तो 10 रुपया का है उसकी वैल्यू, ये एक लेबल दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से लेबल डेटा जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और सुपरविजन कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जाती है। तब उस बच्चे ने छोटा सिक्का मान लीजिए उठा के दिया जाता है कि आप बताओ ये 5 रुपए का है या 10 रुपए का है। तो वो बच्चा देखता है कि अच्छा ये छोटा है, हमको छोटे के लिए और सारे जो सिक्के रखे हैं बताया गया था कि ये छोटा सिक्का जो है वो 5 रुपए, तो वो उस छोटे सिक्के को लेता है, देखता है, हाँ ये उसी से मैच करता है, और जो फीचर्स बताए गए थे कि छोटा है, रेडियस कम है, दिखने में इस तरह का है, हो सकता है वो इमेज भी उससे मैच कर ले, और 5 लिखा तो 5 उस पे से मैच करे, देन वो उसको जो है फाइनली क्लासिफाई कर देता है कि हाँ ये 5 रुपए का सिक्का है। तो इस तरह पहले अगर उसको लेबलिंग करके बताया सिक्का सुपरवाइज किया सिक्कों को पहले देने, तो क्या सुपरवाइज लर्निंग। अगर एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सुपरवाइज के जो है करके 5 और 10 रुपए के वो दे दिए गए स्टूडेंट, और सिंपली कहा गया कि खुद से उसमें जिसको जैसा उसके हिसाब अलग कर लेना, ठीक है। ये नहीं बताया 5 रुपए का 10 रुपए का। तो अब वो क्या करता है, सारे सिक्के हैं उसमें से वो छोटे सिक्कों को एक तरफ कर देता है, एक क्लास बना देता है, 10 रुपए के जो बड़े सिक्के हैं उनको वो चुनता है और एक तरफ रखता है और एक अलग क्लास बना देता है। तो अब वो क्लास का नाम नहीं जानता है कि ये 5 रुपए का सिक्का, ये 10 रुपए का सिक्का, वो कह देता है ये क्लास 1 के सिक्के हैं, मतलब ये टाइप 1 सिक्के हैं और ये टाइप 2 सिक्के हैं, ठीक है, कॉइन। अब जब एक नया सिक्का दिया जाता है उसको, तो वो देखता है कि ये दिखने में किस क्लास की तरह है। तो यहाँ पे उस बच्चे को उसके पेरेंट ने या फादर ने पहले से बताया नहीं कि ये ऐसा छोटा है तो ये 5 रुपए वाला होगा, उसने खुद ही उसको जो है क्लासिफाई कर लिया फीचर्स के बेस पे कि कौन कौन सिक्के एक तरह के देखने में लग रहे हैं, उनको उन्होंने एक क्लास में रखा, दूसरा जो है दूसरे क्लास में रख दिया, ठीक है, दूसरे टाइप के जो सिक्के थे। तो इस तरह से अलग अलग उसने क्लास बना दिया। अब एक नया सिक्का उसको मान लीजिए 10 रुपए का दिया जाता है, तो वो मैच करता है कि ये क्लास 1 की तरह के सिक्कों की तरह ज्यादा दिख रहा है या क्लास 2 की तरह ज्यादा दिख रहा है। तो वो देखेगा कि ये ज्यादा जो रिजेंबल कर रहा है वो क्लास 2 से कर रहा है, तो वो बोलेगा ये ठीक है। इस तरह से बिना उसको प्रॉपर फीचर्स एंड लेबल दिए अगर आप डेटा देते हो और उसके बेस पे ट्रेन करते हो, तो दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो बहुत ही एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों ने लिया। नेक्स्ट वी कम टू slide that is supervised learning, that is about supervised learning. Okay, slide number 15 sir, slide number 15. So in slide number 15 sir, please move to slide number 15 sir. So ये तो हम लोगों ने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया। अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करो तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मेथड इन विच वी प्रोवाइड सैंपल लेबल डेटा टू द मशीन लर्निंग सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने यही बात की कि उसको लेबल डेटा देते हैं, यानी डेटा किस क्लास में जा रहा है उस क्लास का नाम बता देते हैं और उसके कुछ फीचर
देखिए छोटा सिक्का है, छोटा रेडियस कम है, 5 रुपए का सिक्का होगा। तो इस तरह का लेवल डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड द सिस्टम क्रिएट्स अ मॉडल यूजिंग लेवल डेटा टू अंडरस्टैंड द डेटा सेट। और इसके बेस पे वो क्या करता है कि मॉडल जो है अंडरस्टैंड करता है कि ये लेवल डेटा का कि किस तरह का डेटा सेट है, एंड लर्न अबाउट ईच डेटा वंस द ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग आर डन। और हर एक डेटा के बारे में वो इस तरह से सीखता है कि ये छोटा जो सिक्का है 5 कम रेडियस का, वो 5 रुपए का है, ठीक है। तो वंस द ट्रेनिंग एंड प्रोसेसिंग आर डन, जब ऐसा सारे सिक्कों के लिए वो कर ले, फॉर एग्जांपल हर एक डेटा के लिए कर ले, सो देन वी टेस्ट द मॉडल बाय प्रोवाइडिंग अ सैंपल डेटा। तो अब हम एक नया सिक्का जो उसको दे रहे हैं, तो नाउ वी आर एक्चुअली टेस्टिंग, तो हम अब टेस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, कि वो एग्जैक्ट आउटपुट बता पा रहा है, प्रिडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू स्लाइड नंबर 16. So the goal of supervised learning is to map input data with the output data. यहाँ पे मेनली मैपिंग करनी होती है इनपुट डेटा को किसी एक आउटपुट डेटा के बारे में। यानी हम लोग जानते हैं कि ये आउटपुट हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा है उस, फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि इनमें से जो सिक्का है, नया जो सिक्का दिया जा रहा है वो 5 रुपए का हो सकता है या 10 रुपए का हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो जब आप जानते हो कि वो किस टाइप का होगा, क्लियरली उसका लेबलिंग जानते हो, उसका नाम जानते हो, तब आप बस चेक करना चाहते हो कि अभी जो इनपुट आ रहा है वो किस लेवल से एसोसिएट हो पा रहा है, बस इतना मैप करना चाहते हो, तब आप सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज कर रहे हो। The supervised learning is based on supervision and it is same as when a student learn things in the supervision of the teacher. जैसा कि एक टीचर के सुपरविजन में एक स्टूडेंट सीखता है, सो कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट वी कम टू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, स्लाइड नंबर 17. So unsupervised learning is a learning method in which a machine learns without any supervision. इसमें बिना किसी सुपरविजन के मशीन सीखती है, लर्न करती है, and the training is provided to machine with the set of data that has not been labeled. तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग की जाती है मशीन की, वो ऐसे डेटा के साथ की जाती है जो जिसमें लेबलिंग नहीं की हुई होती है, जिसमें क्लासिफाई नहीं किया गया होता है, जिसमें कैटेगराइज नहीं किया गया होता है, ठीक है। यानी वो जंबल डेटा है, हर तरह के सिक्के हैं, आपने एक साथ उठाया पूरा सिक्कों को और वो उस बच्चे को दे दिया है, कुछ इस तरह का केस होता है। एंड द एल्गोरिथम नीड्स टू एक्ट ऑन दैट डेटा विदाउट एनी, अब एल्गोरिथम है वो बिना किसी सुपरविजन के जो डेटा पे खुद क्लास। The goal of unsupervised learning is to restructure the input data into new features or a group of objects with similar patterns. तो यहाँ पे मेनली जो गोल होता है वो ये होता है कि हम लोग डेटा को रिस्ट्रक्चर कर पाए, इनपुट डेटा जो भी दिया जा रहा है उसको एक रिस्ट्रक्चर कर पाए नए फीचर के साथ, कि इस नए फीचर के साथ जो है हम लोग उसको फिर से स्ट्रक्चर कर, या फिर कह लीजिए कि जो सिमिलर पैटर्न के एक ही टाइप के डेटा है उनकी ग्रुपिंग कर पाए, यानी उनको अलग अलग क्लास में क्लासिफाई कर पाए। सो इन नेक्स्ट स्लाइड, in supervised learning we don't have a predetermined result. इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि पहले से आपको रिजल्ट पता नहीं होता है कि किस क्लास में जाएगा, ठीक है, या क्लास का नाम कौन सा होगा, ठीक है। द मशीन ट्राइज टू यूजफुल इनसाइट्स, मशीन खुद से जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके इंसाइट करती है, पता करने की कोशिश करती है कि ये किस क्लास में जा सकते हैं, या क्लासेस पहले बनाती है फिर फाइनली प्रेडिक्ट करती है। सो इन नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टेक्निकली आने से पहले हम लोग सिंपली ये समझते हैं कि आपने एक सिक्का जो है, एक सिक्का एक बार में आप उस बच्चे को देते हो और उससे कहते हो कि ये 5 का है या 10 का है, बताओ। तो करता है खुद से सोचता है, समझता है, जितनी उसकी नॉलेज है उसके बेस पे बोलता है कि ये छोटा सिक्का, वो अभी उसको कुछ पता नहीं है तो उसने बोला कि ये 10 का सिक्का है, तो फिर आप उसको बोलते हो नहीं 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 10 का नहीं है, ये 10 का है। तो अब वो सोचना शुरू करता है कि नहीं है तो कितने का हो, फिर वो सोचता है, समझता है कि ये 20 का है, फिर बताते हो नहीं 20, फिर वो सोचता
प्रैक्टिस से होता है कि जब वो सही आंसर देते हो तो आप उसको रिवॉर्ड देते हो, बोलते हो यस यस गुड वेरी गुड, आप उसको शाबाशी देते हो कि हाँ ये 10 का ये 5 का ही सिक्का है, ठीक है। तो इस तरह से रिवार्ड सिस्टम होता है, फीडबैक बेस्ड सिस्टम होता है कि आप जो भी डेटा प्रोवाइड करते हो उसको मशीन जो है अपने लेवल पे एनालाइज करती है और बताती है सही है तो आपको हमने आउटपुट बताया, तो फिर वो चेक किया जाता है कि वो आउटपुट सही है या नहीं है, और इसके जो है फीडबैक्स देते 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 फाइनली वो फाइनल रिजल्ट पे जो सही प्रेडिक्शन है वो पहुंचता है। ये सही आपने बताया, तो उसके उन फीचर्स को भी स्टोर के लिए उसको सही बताया गया। और ऐसे सिक्के को जब हमने 10 का बताया है, आपने 10 बताया था, कौन से बेस पे उनको भी स्टोर करता है कि इसमें मेरा आंसर फेल करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वेरिएबल और इजी एग्जांपल जो एक हो सकता है, उसमें हम लोगों ने समझा रीइंफोर्समेंट लर्निंग को। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड in which a learning agent gets a reward for each right action। तो अगर उसका आंसर सही होता है तो रिवार्ड मिलता है उसको, and gets a penalty for each wrong action। तो जैसे कि सही नहीं होने पे आपने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और सही होने पे जो उसका आंसर है वो सही होने पे आपने कहा बहुत अच्छे सही आंसर है। तो इस तरह का द एजेंट लर्न्स ऑटोमेटिकली विद दीज फीडबैक्स। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअली में मशीन लर्निंग मॉडल है, वहां पे जो एजेंट है, जो एल्गोरिदम है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है इन फीडबैक से और इम्प्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस को। सो इन reinforcement learning, the agent interacts with the environment and explore it। तो वो खुद ब खुद environment से जो interact करता रहता है, फीचर्स के बेस पे बताता रहता है कि ये ऐसा है, ये इन फीचर्स के बेस पे बताता है कि ये इस क्लास का है। तो वो environment से interact करता है, खुद ही explore करता है। goal of an agent is to get the most response, और उसकी कोशिश होती है कि उसका आंसर ज्यादा सही हो उन the robot automatically learns the movement of his arms is an example of reinforcement learning। तो एक रोबोटिक डॉग जो कि ऑटोमेटिकली सीख लेता है कि उसके आर्म्स को कैसे मूव करना है, वो एक एग्जांपल हो सकता है reinforcement learning का। सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी के मशीन लर्निंग के जो ऑन स्लाइड नंबर 21 यू कैन सी रियली के मशीन लर्निंग के जो ये डिफरेंट अभी हम लोगों ने टाइप्स देखे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, वो किन किन डोमेन्स में यूज होती है। तो आप देख पा रहे हो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड उस तरह के एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए, और सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग जो होती है, एस्टिमेटिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो है रिग्रेशन या कहीं ना कहीं कह लीजिए सुपरवाइज लर्निंग यूज होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जहां उस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वहां पे बिग डेटा विजुअलाइजेशन, मीनिंगफुल कंप्रेशन, स्ट्रक्चर डिस्कवरी एंड फीचर इलिसिटेशन इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। रेकमेंडर सिस्टम्स को यूज किया जाता है, मार्केटिंग में यूज करते हैं, तो क्लस्टरिंग से रिलेटेड जो अप्रोचेस होते हैं। जो है एआई बेस्ड गेम होते हैं, इसके ओके स्किल एक्विजिशन जो होता है, लर्निंग टास्क, रोबोट का नेविगेशन जो है, रियल टाइम में कुछ डिसीजन लेना है, वहां पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट वी कम टू ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग, दैट इज स्लाइड नंबर 22। सो डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग को अगर हम लोग फिर इसके टेक्निकली समझने पहले हम लोग ये समझें
कि डीप लर्निंग सिंपली ऐसा है कि जैसे ह्यूमन माइंड में न्यूरॉन्स जिस तरह से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसी को यूज करने की कोशिश की गई है मशीन लर्निंग के मॉडल्स में। ठीक है, तो जहां पे भी न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज होता है, न्यूरल नेटवर्क आप कह सकते हो कि मैथमेटिकल एक मॉडल है। ठीक है, मैथमेटिकल एक मॉडल है जो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली उसी तरह काम करता है जैसे ह्यूमन माइंड के न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसी को यहाँ पे मैथमेटिकली मॉडल करने की कोशिश की गई है। तो जहां पे भी उन न्यूरल नेटवर्क्स का यूज होने लगे मशीन लर्निंग में, तो आप कहते हो कि वो जो सेट है, सबसेट है, वो सेक्शन है, वो आप डीप लर्निंग में एंटर कर गए हो। ठीक है, तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो एआई का सबसेट मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग कब कहेंगे? जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स में न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करने लगते हो। और न्यूरल नेटवर्क क्या चीज है? न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिकल मॉडल है, जैसा कि ह्यूमन ब्रेन में एक्चुअली में बायोलॉजिकल नेटवर्क्स काम करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी को मैथमेटिकली यहाँ पे मॉडल करने की कोशिश। So deep learning is a subset of machine learning where artificial neural networks are inspired by the human brain. These further analyze and accumulate insights from the data and later learn the same. तो इसी तरह डेटा से इंसाइट करते हैं और उसको फाइनली एनालाइज करने के बाद लर्न करते हैं। Sir, your voice is not clear. Algorithm. So my voice is not clear for all of you, sir. or only for Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Your Yes, voice sir, is not audible. clear. Yes, sir. audible? Okay, so what I will do, I will reconnect. Okay, good. So we are talking about overview of deep learning. So any deep learning algorithm would reiterate and perform a task repeatedly, tweaking and improving bit and bit. इसमें भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि एक टास्क को रिपीटेडली यहाँ पे जो है किया जाता है और उसके बेस किया जाता है बार बार कि उस डेटा के बारे में सही एनालिसिस की जा रही है या नहीं। ठीक है, तो वो न्यूरल नेटवर्क के डिफरेंट से हर जो काम पे जा रहा है उसको क्या कहते हैं, एनालाइज किया जाता है कि यहाँ तक की एनालिसिस सही है नहीं, और वहां एनालिसिस सही नहीं है अगर, तो उसको इम्प्रूव किया जाता है, और अगर सही है तो नेक्स्ट लेयर को सेंड कर दिया जाता है वो डेटा। सो the term they have various layers that enable learning, unlearning and relearning. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है जो ह्यूमन के न्यूरॉन्स लेयर्स होते हैं, न्यूरॉन्स के लेयर्स होते हैं, को कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है, इसीलिए कहा गया इसका नाम डीप लर्निंग। ओके, कि लेयर वाइज आप डीप जा रहे हो, उसको और डीपली एनालाइज कर रहे हो हर लेवल पे। ठीक है, सो इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी स्लाइड नंबर 23 में आपको दिखेगा कि कुछ है इमेजेस का कलेक्शन है, कुछ इमेजेस का कलेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इमेजेस का कलेक्शन है, और वो सारे इमेजेस जो हैं वो एज अ इनपुट लेयर को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी ये सारे इमेज जो हैं एक एक करके इनपुट लेयर को प्रोवाइड किए गए हैं। इनपुट लेयर मतलब कि पहले जहां पे ये इनपुट एज एन इनपुट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसके बाद इसके बीच में आउटपुट लेयर, जहां पे फाइनली आपको बताया जाएगा कि ये इमेज इस तरह की है, तो उन दोनों के बीच में कई और लेयर्स हैं। तो पहली जो लेयर है उसको अगर हम लोग हिडन लेयर कह लें, हिडन इसलिए कि वो जो है ना इनपुट में है ना आउटपुट में है। ठीक है, तो इसीलिए जो बीच की लेयर्स हैं वो हाइड रही हैं कहीं ना कहीं। तो हिडन लेयर जो है उसमें क्या है कि फेस के जो फीचर्स हैं, जो आपने इमेजेस डाले हैं फेस के, उसके फीचर्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, और कई बार एनालाइज किया गया जो है अलग अलग फीचर के लेवल पे।
उसके बाद जो वहां पे एनालिसिस हुई उसको आगे भेज दिया गया और फाइनल फेस का जो है एक हिडन लेयर 2 पे फाइनल उन फेसेस को जो है आइडेंटिफाई किया गया कि ये किन फेसेस से रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सारी एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट करने के बाद फाइनली आउटपुट लेयर में बताया जाता है कि ये फेस इस तरह का है, ठीक है। इस सारी ट्रेनिंग करने के बाद जब आप एक नया फेस देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो बॉलीवुड कई सारे एक्टर्स के फेस का जो है इमेज कलेक्ट किया हुआ है और उन सारे इमेजेस को आपने जो है पहले प्रोवाइड किया इनपुट लेयर को, फिर वहां से फेस के फीचर्स पे हिडन लेयर पे वहां पे कुछ प्रोसेसिंग हुई, आगे प्रॉपर्ली और पहचाना ये है तो वो फेस आ जाता है किसके लिए और वो फेस के साथ क्या नाम एसोसिएट, ये सारी एनालाइज करके हिडन लेयर 2 पे आउटपुट लेयर पे पहुंचा जाए। और इस तरह से पूरी एनालिसिस करने के बाद जब आप एक नई इमेज भी दोगे, ठीक है, तो वो इसी तरह से इन लेयर से पास होने के बाद फाइनली बता दिया जाएगा कि ये इस एक्टर की, ठीक है। तो अभी हम लोग एकदम ब्रॉडली देख रहे हैं, हालांकि इनमें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लेयर वाइज भी, उसको भी हम लोगों को डिस्कस करना है। बट यहाँ हम लोग अगर सिर्फ इतना भी समझ पाते हैं कि लेयर वाइज यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, एक इनपुट लेयर होती है और बीच के जो लेयर्स होते हैं जिनमें अलग अलग फीचर के बेस पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो हिडन लेयर्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कह लीजिए कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज करके जो है मशीन लर्निंग अप्लाई किया जा रहा है, जो एक्चुअली में डोमेन है डीप लर्निंग का। तो यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल बेसिक जो ओवरव्यू होता है लेमैन की तरह से, अभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट या टीचर की तरह से हम लोग बात ही नहीं करें, एक लेमैन की तरह से बात करें तो हम लोग अभी डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो जान गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इजीली जो है समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरसेट है, उसका सबसेट है मशीन लर्निंग, जहाँ पे आप मशीन कैसे लर्न करे उसको उसके लिए सोचते हो। एंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी सबसेट है, जहाँ पे आप न्यूरल नेटवर्क्स को यूज कर रहे होते हो। तो अब अगर कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, इन जनरल इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये चीज हो गई कि आप वहां पे सोच रहे होते हो, वहां पे बात कर रहे होते हो कि कैसे मशीन्स जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अचीव करें, ठीक है, ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली बिहेव करने लगे। और मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ इतने के बारे में कि वो मशीन कैसे लर्न, ठीक है, डेटा से। और डीप लर्निंग जो है वो बात है कि मशीन लर्न करने के लिए अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज कर रही है तो वो डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट में आता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं एंड सुपरसेट एंड सबसेट की तरह से इनको देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 24, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में भी जहां पे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज कर रहे हो वो डीप लर्निंग के डोमेन में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग किसी भी रोबोट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे जो मशीन या ऐप है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट वी आर ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जहां हम लोग मैथमेटिकल मॉडल और मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज करके बात ये करने लगे कि कैसे मशीन्स इस प्रीवियस डेटा के बेस पे सीखने लगे, लर्न करने लगे, तो हम लोग मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। और इस सीखने के लिए मशीन अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करती है तो हम लोग डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जो कैटेगराइजेशन हो सकता है या कह लीजिए डिफरेंस हो सकता है उसके बारे में है। नेक्स्ट वी कम टू कि इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन सब जो मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन जनरल आपने सुना होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुई है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी आइडिया जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप सबके लिए क्वेश्चन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो, क्या ऑन स्लाइड नंबर 26 कि आपको अभी तक कौन सी लैंग्वेज आती है। आपको हो सकता है आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, HTML पढ़ा होगा, कुछ जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो पढ़ी होगी, सी पढ़ी है, जैसे आपने किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ी है,
Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी प्लस प्लस पढ़िए। सी और सी प्लस में बहुत बेसिक सा कोई डिफरेंस बता सकते हैं? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। कि सी में ये तो चीज सी होती है, जो सी है प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट नहीं होती। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और सी प्रोसीजर Second union. है। सही सही, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉड लेवल पे जो एकदम मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस है कि सी जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, वहाँ फंक्शंस में हम लोग काम करते हैं, यहाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में काम करते हैं। सी प्लस प्लस में वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को सपोर्ट करती है सी प्लस जो है। तो इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इतने लैंग्वेजेस पढ़ लिए तो फिर पाइथन पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आप देखोगे जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स में आप अपने लेवल पे भी पाइथन की बेसिक चीजें पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो कोडिंग जिसके लिए आपको सी या जावा या किसी और लैंग्वेज में कई लाइंस लिखनी होती है, आप पाइथन में सिंपल 1 लाइन कोड लिख के काम कर सकते हो। तो एज अ प्रोग्रामर लेवल पे हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है अगर आप पाइथन जानते हो। दूसरी जो बड़ी बात क्यों वो पॉपुलर हुई स्पेशली एआई एंड एमएल में, से लाइब्रेरीज हैं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग में जो पूरा पूरा मॉडल बनेगा उसकी कोडिंग करके और एक लाइब्रेरी बना के रख दी गई है, आपको सिर्फ वो लाइब्रेरी का नाम यूज कर लेना है, उसमें अपने पैरामीटर्स या डेटा दे देना। पूरी चीज जो उस पाइथन वो मशीन लर्निंग मॉडल से होना था वो आपके एक लाइन के कोड से सिंपली होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कह लीजिए किया गया है पाइथन को इसीलिए उसी कोड पर सी या जावा या किसी दूसरी लैंग्वेज में कई लाइन ऑफ कोड लिखना, ठीक है, तो उसको इजी बना दिया है के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज रख के आप इसको इंपोर्ट करके सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो डाउट आपको अगर चाय पीनी है, कॉफी पीना है, तो आपके पास इजी ऑप्शन क्या होता है कि आप या तो पूरा सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लो और कॉफी बनाओ घर पे और फिर पियो, या फिर दूसरा है आप सीधा कॉफी शॉप पे जाओगे, कॉफी ऑर्डर करोगे, आपको कॉफी मिल जाएगी। तो वो इजी कहीं ना कहीं लगता है, इसीलिए भी ये है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वी कम टू स्लाइड नंबर 27 इन विच एक्चुअली तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं पाइथन के बारे में। पाइथन इज सिंपल। देखिए सिंपल उनके लिए जिनको आती है, तक पाइथन पढ़ी या सीखी नहीं है, आप उससे पूछे, हो सकता है कि उनको दूसरे बात आती है, उसको तो बोलेगा नहीं सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इजी टू लर्न है। सिंपल का ये है मतलब कि यहाँ पे कोडिंग कम लाइंस में और जो जनरल कीवर्ड्स हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं वैसे कीवर्ड्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, तो सीखना आसान है। जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब है कि कई तरह के पर्पस के लिए जो जनरली इसको यूज किया जा सकता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आप जिस तरह का भी एप्लीकेशन बना रहे हो वो पाइथन प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हो। हाई लेवल है, हाई लेवल आप जैसा जानते हो सी प्लस प्लस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि हम लोग समझ पाते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज को हम लोग ने लो लेवल कह दिया है क्योंकि जो हम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये नाम किसको देना था, हाई लेवल है और लो लेवल है, ये एक ह्यूमन बीइंग को नाम देना हाई लेवल है कौन लो लेवल है, तो जो हम लोग समझ पाते हैं उसको ही हाई कह दो। तो इस तरह से जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है हाई लेवल का, उसी बेस पे यहाँ भी है कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस का, ठीक है, एंड मैसेज पासिंग का, तो वो सारे यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे भी यूज किए। इज एन इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आल्सो। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर को यूज करके इसको रन किया जाता है, कंपाइलेशन नहीं होता है, स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। स्क्रिप्ट का सीधा सा मतलब है कि आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बना के ऑलरेडी रख लो जिसको आप डायरेक्ट कुछ टास्क को ऑटोमेट करने में यूज कर पाओ, ठीक है। तो ये इंटरप्रेटेड एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जीवी रोसम जो है इज नोन एज फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये फाउंडर हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। नेक्स्ट वी कम टू स्लाइड नंबर 28। सो व्हाई वी शुड लर्न पाइथन।
तो इसमें कई पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। इजी टू यूज एंड लर्न है, अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो इजी रहेगा इसको यूज करना भी और सीखना भी। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि जो है बिना एफर्ट लगाए सीख जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अभी हम लोगों ने बात की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें कुछ नई जोड़ना चाहो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑलरेडी बहुत सारी बनी है। GUI का प्रोग्रामिंग सपोर्ट फेस चाहते हो यूज करना चाहिए भी इसमें सपोर्ट है। इंटीग्रेटेड है, इसमें कई और चीजें एम्बेडेबल है। ये दूसरे प्रोग्राम में PHP में भी पाइथन का कोड को एम्बेड किया जा सकता है। ये जावा के प्रोग्राम में आप चाहते हो पाइथन का कुछ यूज करना, तो पाइथन का प्रॉपर आप उसका जो है बना के वो एम्बेड कर सकते प्रॉपरली छोटा एप्लीकेशन में। इसमें DMA यूज होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की जा सकती है। और इसमें एक वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, जिस वजह से ये आपको बहुत ही ईजी हो जाता है कि आप उस लाइब्रेरी में सारी कोडिंग रिलेटेड आप सीधा सीधा उसको कर लेते हो। नेक्स्ट यूज तो मशीन स्लाइड नंबर 20 सोल बेस्ड एप्लीकेशन, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, यानी अभी के टाइम पे जितने भी इस तरह के डोमेन हैं उन सब में ही कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वाइडली एप्लीकेबल है। वरना कई जगह ऐसा होता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, वो सिर्फ इस डोमेन में यूज हो सकती है और दूसरे डोमेन में यूज नहीं होती, तो वहां आपको फिर दिक्कत होती है। तो अगर अभी के टाइम पे किसी से पूछा जाए कि उस स्टूडेंट ने कहा, मान लिया जाए BCA BTech या MCA का स्टूडेंट है, उसने कहा सर इतनी लैंग्वेजेस हमने सेमेस्टर्स में पढ़ ली, लेकिन जो है अब हम फाइनल एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और उसी को फाइनली रखना चाहते हैं आगे के लिए भी, तो उसको सजेस्ट किया जाएगा कि आप पाइथन आप जो है पाइथन सीखो प्रॉपरली, क्योंकि इसका वाइडली एप्लीकेशन है हर तरह के डोमेन में। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें थी पाइथन के इंट्रोडक्टरी आइडिया के बारे में। नेक्स्ट वी कम टू के अब अगर आपको पाइथन यूज करना है, पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए IDEs क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स क्या है, तो आपको कुछ ना कुछ उसका जो IDE इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आइडल है एक जो सबसे सिंपल उसका एडिटर आता है, ये स्पाइडर का है पाईचार में। तो आप देखेंगे कि कई तरह के हैं, इसके अलावा भी है जो यहाँ पे स्लाइड पे हैं, उनके अलावा भी हैं। जुपिटर उसमें से बहुत फेमस है, स्पाइडर फेमस है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं। और अगर आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहते हैं तो एनाकोंडा है, ठीक है, को यूज किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी एक आप इंस्टॉल करके, और थोड़ा बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा पहले, आपके लिए कहाँ से फाइल में जाना है, कहाँ से रन कराना है। तो हम लोग यहाँ पे उससे बेटर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल कोलैब का पूरा इन्वायरमेंट। इन नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी स्लाइड नंबर 31 कि गूगल कोलैब पे आप अपनी प्रोग्रामिंग पाइथन के प्रोग्राम्स लिख सकते हो, रन करा सकते हो। अब गूगल कोलैब क्या चीज है? गूगल कोलैब आप सिंपली एक ऐसा इन्वायरमेंट मान लो कि जो आप ऑनलाइन ब्राउजर पे गूगल कोलैब की वेबसाइट को खोलते हो एंड अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू जो है आप लॉगिन करते हो, और वहां पे आप एक नई नोटबुक लेते हो और वहां पे अपनी कोडिंग कर सकते हो पाइथन की, करा सकते हो उसको, और भी उसको फिर सेव कर सकते हो आपके गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। और जहाँ से भी चाहो इंटरनेट कनेक्शन हो, ब्राउजर हो, तो आप ये कह सकते हो टेक्नोलॉजी बेस्ड गूगल की सर्विस है। ठीक है, इन जनरल जो है मशीन लर्निंग और जहाँ पे स्पेशली जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करना होता है या प्रोसेस करना होता है, जहाँ पे GPUs की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम लोग गूगल कोलैब का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि एक सिंपल गूगल कोलैब आप कैसे ओपन करोगे। तो सिंपल उसके लिए आपको अपना जीमेल अकाउंट पहले ओपन कर लेना है। जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि
इसको ओपन कर लोगे आप, एंड अगर आपका जीमेल ऑलरेडी ओपन है तो आपको सिर्फ सर्चिंग में गूगल कोलैब और सिंपल कोलैब, इस पे देखोगे आप पहला ही लिंक आ रहा है वेलकम टू कोलैबोरेटरी वाला, इस पे आप क्लिक कर दोगे। लेकिन ये देखिए ये पहला इन्वायरमेंट खुल के आ गया। यहाँ पे अगर आपके पहले से कुछ नोटबुक बने हैं तो वो सारे दिखते हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो है आप सिंपली एक नया नोट लगाएं करोगे, न्यू नोटबुक पे क्लिक कर दोगे। न्यू नोटबुक का बटन जो नीचे है उस पे क्लिक कर देते हो। कि एक नई बुक खुल जाएगी जो कहीं ना कहीं जुपिटर बुक की तरह आपको देख, अगर आपने जुपिटर पे यूज किया हो नोटबुक तो आप फाइल का नाम बन के आ जाएगा अनटाइटल्ड 0.ipynb। ठीक है, तो ये जुपिटर की फाइल का एक्सटेंशन होता है, बट यहाँ पे IPYNB है कि ये क्लाउड बेस्ड है। तो अनटाइटल्ड तो कुछ नाम दे सकते हो जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। अदरवाइज सेल जहाँ कर रहा है वहाँ पे आप लिख देते हो, सिंपली अपने कोडिंग लिखना शुरू कर सकते हो यहाँ पे से पाइथन प्रोग्राम। तो जैसा कि इन जनरल एक ट्रेडिशनली हम लोग किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, तो इसमें हम लोग लिखते हैं PRINT प्रिंट सिंपल इन स्मॉल लेटर्स एंड स्मॉल पैरेंथेसिस में हम लोग लिखते हैं हेलो डबल कोट और हेलो, और फिर इस बटन पे क्लिक कर दोगे तो ये रन करने लगेगा। वो आपकी इंटरनेट स्पीड पे कि आपको आउटपुट कितनी देर में मिलता है। आउटपुट तो आप देख लो एक लाइन में प्रिंट हेलो और प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो है ये लिख सकते हो। जब आप इस तरह से अपनी पूरी कोडिंग लिख लेते हो, जैसे जैसे आप कोडिंग सीखते जाते हो यहाँ पे लिख सकते हो, करा सकते हो, फिर आप क्या करते हो कि फाइल में जा रहे हो, फाइल बटन पे और फाइल में जाकर सेव, तो अगर आपने सेव अ कॉपी इन ड्राइव, आपके जी ड्राइव में ये सेव हो गया, नेक्स्ट टाइम आप जब भी खोलोगे तो इसी नाम से आपको फाइल है और आप उस पर क्लिक करके फिर से यहाँ पे आ सकते हो। तो आप चाहो तो अपने कोड को पूरा से ऑनलाइन रन करा सकते हो पाइथन में। आपको इन्वायरमेंट इस तरह से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये जो है सहूलत है कि आप अपने पाइथन कोड को सीधा सीधा अगर ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास तो अपने ब्राउजर में भी रन करा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ टूल साइट्स हैं जो पाइथन का एडिटर करती हैं, जैसे programs.com नाम से है, तो इन पे भी टीक इंटर अपडेटेड कुछ वेबसाइट है, तो उस पे आप सीधा सीधा अदर लैब पे अपने पाइथन कोड को रन करा सकते। So next we come to again our slides, और हम कंपेयर करते हैं कि गूगल कोलैब में क्या रन करा। अब हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड में गूगल कोलैब के बाद हेलो स्लाइड 32। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नोट पढ़ रही है। ओके लेट मी रिकनेक्ट। Sir, your voice is not audible. अगर आप एक
सी प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख रहे हो तो कितनी लाइंस हैं? आपको पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी है, फिर मेन के अंदर में फंक्शन लिखना है, प्रिंटफ, फिर हेलो वर्ल्ड लिखना है, और हर एक लाइन के बाद जो सेमीकोलन यूज करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 लाइंस लिखनी पड़ी है आपको, तब जाके आपका एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो लिख पाते हो। दूसरी स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हेलो वर्ल्ड इन जावा है कि अगर आप जावा में इसी प्रोग्राम को लिखो तो पहले क्लास बनानी होती है एक, उसके अंदर में मेन फंक्शन लिखते हो और फिर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये पूरा आपको लिखना होता है अपने प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि वहां पे जितनी भी ज्यादा लाइंस थी, स्पेशली जो प्रोग्रामर्स पसंद करते हैं पाइथन को, उसके पीछे यही रीजन है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइंस ऑफ कोड बहुत ज्यादा हो जाती हैं सिंपल चीजों को करने के लिए भी, जो कि अगर आप पाइथन में जाओ तो देखो एक लाइन का है और सेमीकोलन वगैरह के लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से कितना यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड को कम कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अगर इतना बोलते हो कि सिर्फ लाइंस ऑफ कोड कम हो जाती हैं, तो ये एक प्रोग्रामर के साइड से आप डिफेंड कर रहे हो पाइथन में। कहीं ना कहीं आपको अगर मशीन लर्निंग के लिए आप बात कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो भी मॉडल्स हैं उनको लाइब्रेरीज में रख दिया गया है। आप सिंपल उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो और उनके फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी कोडिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि उसकी कोडिंग जो है 100 लाइंस की, 200 लाइंस की ऑलरेडी वहां पे करके रखी हुई है। तो इस वजह से भी आपको इजी पड़ती है, और जैसे ही पाइथन सीख जाते हो बेसिक उसको यूज करना, तो जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का बंदा है वो भी इजीली फिर उसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए ये वाइडली पॉपुलर हो रहा है। हालांकि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए सीखना इजी होता है, क्योंकि वो इस तरह की बाकी लैंग्वेजेस, लॉजिकल प्रोग्रामिंग चीजें सीखे हुए होते हैं। बट जो अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि ये इतना वाइडली पॉपुलर हुआ है कि जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी इजीली पाइथन सीख लेते हैं और उसको यूज कर पाते हैं। तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो लाइब्रेरीज बना के रख दी गई हैं, उनको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए मशीन लर्निंग में पाइथन वाइडली यूज होती है मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आई होप कि जो बेसिक चीजें हम लोगों ने आज के सेशन के लिए रखा था कि डिस्कशन कर पाए, वो इतनी ही चीजें थी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। यस स्टूडेंट्स, किसी की कोई क्वेरी हो आज तक जितना कवर हुआ है? नो सर। रिजवान सर? जी सर। Sir, all contents were covered very well, but the only thank you so much, problem students were facing is network issue from yours. Yes sir, that I can understand. That you need to fix. Yes sir, yes आप थोड़ा सा sir. नेक्स्ट सैटरडे before next class हम करते हैं। क्लास बहुत अच्छी जाएगी और बच्चे भी और अच्छे से इंटरेस्ट लेंगे। yes, तो उसके लिए नेटवर्क स्पीड थोड़ा सा उस हाँ, पे वो मेरी साइड में इशू है यहाँ पे। यस सर, आपकी साइड में अगर कोई वाईफाई का कनेक्शन वगैरह अवेलेबल हो ना तो वो हाँ सर, हम that will नेक्स्ट work क्लास fine. से पहले अरेंज करते हैं कुछ। So I request all the students to please switch on your camera so that actually we have to maintain the record of these classes, right? तो जितने भी कर सकते हैं ऑन करें कैमरा so that we can have a pic so that we can record. Just a minute.
ओके, इसमें उत्कर्ष था, उत्कर्ष पांडे। यस सर। उत्कर्ष, नेटवर्क कैसा है तुम्हारे पास? सर मेरे पास तो अच्छा नेटवर्क है सर। तो अगर नेक्स्ट सैटरडे तक अगर रिजवान सर का नेटवर्क इशू रिजॉल्व नहीं होता ना, हाँ जी सर। then you need to what I have done today, right? Okay, sure sir, I will. Because मेरे को थोड़ा से दूसरे काम भी होते हैं in between. Sure sir. आज मुझे रिजवान सर ने एंगेज कर दिया यहाँ पे। कोई नहीं सर, मैं आज भी कर देता वैसे, अगर आप ना करते तो। नहीं, वो रिजवान सर के साथ आप नंबर वगैरह शेयर कर लेना, तो आप बेटर हेल्प कर पाओगे उनकी इन चीज़ों में। ठीक है, सो एनी क्वेरीज फ्रॉम एनीवन, कोई और सजेशन? वी विल आल्सो शेयर अ फीडबैक फॉर्म विद यू ऑल, राइट? तो उसको भी आप फिल कर देना आप सभी। सर तो वो यस सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस मशीन लर्निंग के लिए अलग से? हाँ यस, बना हुआ है सर। वो BCA सेकंड ईयर में लिंक शेयर नहीं हुआ। कोई बात नहीं सर, कर देंगे। एक्चुअली में आप लोगों ने पहले रजिस्टर नहीं किया था ना, तो इसलिए शेयर नहीं हुआ। रिजवान सर? जी सर जी। तो ये सभी क्लासेस में ना एक बार आप वो इनविटेशन शेयर कर देना, सो दैट दे कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। Sure sir, sure sir. Any other feedback like except this network issues? Anything else you would like to say? Anyone? उत्कर्ष, कुछ फीडबैक दो। Sir, everything was fine. Just the internet issue was there. Everything was perfectly fine. We already admitted. What sir? We already accepted network issue. Yeah sir, and everything was perfect, and it was just an introductory class, so we cannot say much about it right हम now. ये लेके चल रहे हैं ना कि अभी किसी को कुछ नहीं आता। I know that कि many of you may be knowing the basics of Python also, and many of you have done some programming also. But कोई कोर्स स्टार्ट किया जाता है ना, तो हम उसको स्क्रैच से ही लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, so that everybody can be on same page. Yes sir, it was perfect. मतलब काफी बेसिक से सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, so it was perfect for the beginner also and for the intermediate also. Yeah, great. Anyone else? Sneha? Yes sir. Any observation or any feedback from your side? Sir, class was good. The only issue was the network. Okay, we will work on this issue, right? So, and yes sir, we can give our best to you all students. So thank you Rizwan sir. Anything आप कुछ कहना चाहेंगे रिजवान सर? हाँ सर, तो थैंक यू सो मच दिनेश सर कि आपने आज वो पूरा सेशन वरना स्पॉइल हो सकता था, आपने वो स्क्रीन शेयर कर दिया, आपका इतना टाइम भी एंगेज हो गया। थैंक यू सो मच सर। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होता सर, मैं तो सीखने वाला हूं। हाँ यस सर, हर किसी से सीख तो लेना चाहिए। चाहिए। आपने जिनका कहा उत्कर्ष के बारे में बताया ना कि वो हेल्प कर सकते हैं इसमें। उत्कर्ष व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना आप? यस सर, मैं सर से खुद कांटेक्ट कर लूंगा सर सैटरडे में। तो आपको जब भी कुछ रिजवान सर, जब भी कुछ ऐसा करना हो तो आप स्लाइड्स वगैरह पहले उत्कर्ष को शेयर कर देना, देन आई विल हेल्प यू आउट, राइट? श्योर, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज के सेशन से रिलेटेड और कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे जो YouTube पे, अगर इससे रिलेटेड जो डिस्कशन आज हम लोगों ने किया है तो वो आपको शेयर कर देंगे। वो मुश्किल से 5 या 7 मिनट के वीडियोस हैं YouTube पे, तो उसको आप देखोगे तो और कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग शेयर करते रहेंगे। और सर आई होप कि फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे वी विल हैव हैंड्स ऑन, राइट? सम वी हैव मोर प्रैक्टिकल वर्क, आई थिंक, राइट? यस सर। ओके, ग्रेट। तो अगली बार से आप लोग भी ना, सबका जीमेल आईडी होगा, एक बार गूगल कोलैब चला के देखना, ठीक है? बेसिक स्टेप मैंने डिस्प्ले कर ही दिए थे, कुछ नहीं करना, गूगल में जाना है, गूगल कोलैब लिखना है, वो अपने आप आ जाता है, वो पहला लिंक होगा जनरली। समवन इज रेजिंग हैंड। राघव, आई थिंक राघव रेज्ड। राघव बोलो। अनम्यूट करो और बोलो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये गूगल कोलैब अगर आप देख लेना, और कोई उस पे जुपिटर पे काम करना चाहता है, अगर वो पहले से फेमिलियर है तो वो उस पे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक गूगल कोलैब इज मच better platform as compared to others. Yes, sir. So I think it's good enough for today. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, there was some problem many times on Jupyter. We can't launch a notebook. उसमें ना आपको देखना पड़ेगा एक बार, कुछ कई बार ना कुछ पैकेजेस अनइंस्टॉल रह But जाते sir, हैं. I have another option for it, for everyone. We Okay. can use or install Anaconda or Miniconda also, where we can platform up like Jupyter and many other platforms where हाँ, we can उसमें use. एनाकोंडा में आपको जुपिटर, स्पाइडर ये सब Yes, मिल sir. जाएगा. कोई It is अच्छी बात very है, आप वो easy भी there. यूज कर सकते हो, कोई Yes. रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें एक को तो लेके चलना पड़ेगा ना, ठीक है, सीखने के लिए. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल कोलैब लेके चलते हैं, आप अपने एंड से जो प्लेटफॉर्म यूज करना चाहें, जो भी आईडी यूज करना चाहें, राइट. ठीक है, ओके. सो टेक केयर एवरीवन, अच्छे से रहो, थोड़ा ध्यान रखना इस क्रूशियल टाइम है. ओके. Okay, so we wind up, sir. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर. Thank you, sir.